है मंजर आज जुदाई का, आज फिर कुछ आंखें भर आएंगी। है मंजर आज जुदाई का, आज फिर कुछ आंखें भर आएंगी। हम तो सो ना सकेंगे रातों में, तो नींद तुम्हें भी नहीं आएगी। आई थॉट एंडिंग माई लाइफ इज ओनली ऑप्शन, एंड मेरे मुंह से निकल गया कि बस यार अब तो लाइफ एंड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मेरा पूरा थॉट यही था कि मैं दिल्ली से निकलूंगा, बट आई विल नॉट रीच बॉम्बे। आई वुड डू समथिंग, आई वुड एंड माई लाइफ, बिकॉज सफरिंग खत्म हो जाएगी। इफ आई एम नो मोर, इफ आई एम नॉट देयर, सफरिंग पूरी खत्म। इवन इफ आई कॉल माई सेल्फ एन एथिस्ट, मैं नास्तिक हूँ, मैं पिछले 8-10 साल से किसी मंदिर में नहीं गया। उस दिन ये साक्षात भगवान बन के बंदा मेरी लाइफ में आया। फासला अगर 1000 कदमों का भी हो या 1000 मीलों का भी हो, उसके लिए पहला कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। समझना है कि मेरी कहानी हर किसी की कहानी नहीं है। बहुत फ्रीक्वेंटली वो एक वर्ड यूज़ करते हैं, ऑल मैन आर डॉग्स। डू यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड सन्स डे? मैंने रिसेंटली देखा था, बिकॉज मैं आपसे डिस्कशन करने से पहले गूगल चेक करा था। देयर इज समथिंग कॉल्ड सन्स डे। बहुत हो गया है, यू हैव टू स्टॉप दिस समथिंग। मैंने अपनी गाड़ी में 5 मिनट बंद करके सिर्फ चिल्लाया हूँ तो मेरी जेब में कुछ शेर क्या हो गए, सिक्कों से ज़्यादा तो मेरे अपने निकल गए। दुश्मन की ज़रूरत नहीं है आपको बर्बाद करने की, ऐसा पार्टनर मिल जाए तो लाइफ गेम इज़ डन। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। यहाँ तो अपने ही लूट रहे हैं, सो कॉल्ड। या एग्जैक्टली। ज़र्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, ज़र्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा। पहचान अपनी मैं धूप तलक छोड़ आऊंगा। खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। आवाज़ So, hi everyone. My name is Praveen and I'm your host. So, today we are starting one new channel and podcast regarding something which is unheard in this nation and which is increasing very fast. Today I'm talking about unheard men who are suffering from majorly from the wrong marriages. So, I'll tell you before starting to this topic, like from where I got this idea and why we are starting today and what brings me today to start this podcast channel. So we all heard about the Bangalore techie Atul Subhas case, Punit Khurana, Delhi, the bakery owner case. So these guys has ended their life just because of a wrong marriage. So whenever this type of cases are coming in the society and we are hearing on the social media, for some days, some period of time, we are discussing this, we are showing our empathy to these people, and after some time the stories are getting faded. We are not listening to the people, we are not discussing more on this particular part, but the stories are going fade. So I'll share my one good close friend's experience with you, which bring me to start this, which forced me to share his story with all of you, and which is important. So I'm talking about my one colleague. So now let's discuss about our today's guest. So before giving him his introduction, I'll share my story, how I met this person and how I know about this person. So I have joined my current organizations a year back. There I met this person. Senior to me, jolly person, a light-hearted person. Every time, like whenever we are in stress or in workload, this particular guy come to our desk and ask like, क्या stress नहीं लेना है, चलो चाय का एक break लेके आता है, light heart होता है, उसके बाद अपन will start on the work. Like whenever we are discussing about the marriage or anyone in our group, anyone in our colleague group are going to get married and he's discussing about like I'll engaged and I'm going to be married after a year. So suddenly his behavior is getting changed. Not like 100%, but he started about like कि ठीक है यार क्यों करनी शादी, क्या ही कर लोगे शादी करके. So that time I was little curious and like in shock, like इतना जॉली बंदा मैरिज का टॉपिक आते ही ये थोड़ा नेगेटिव क्यों हो जाता है, लाइक कि व्हाई यू आर डूइंग मैरिज एंड एवरीथिंग. सो आई आस्क्ड हिम लाइक कि अंकुश भाई आप मैरिड हो? बोलता नहीं मैं बैचलर हूँ. ठीक है, सो ना बैचलर होके भी ये बंदा शादी के लिए इतना नेगेटिव क्यों है. सो वो टाइम पे
We don't know about this person, definitely. As a colleague, we are knowing each other. But after Atul Subha's case, Punit Khurana's case, we were discussing one day about these cases with the same person, my friend अंकुश. डिस्कशन करते करते अंकुश भाई ने मुझे एक चीज़ बताई कि भाई ये सब चीज़ से मैं गुजर चुका हूँ. सो दैट टाइम आई वॉज लिटिल शॉक्ड कि भाई इनके साथ भी ऐसा हो सकता है क्या. मतलब इतना हैपनिंग बंदा, इतना हैप्पी पर्सन जो लोगों को हमेशा हंसाते रहता है, क्या ये भी इस सफ़र से गुजर सकता है. सो जब हमने इनके बारे में मतलब इनके साथ जब डिस्कस करा कि आप इस पर्टिकुलर ट्रैप में, आप इस पर्टिकुलर रॉन्ग मैरिज में कैसे फंसे, तब जाके मुझे इस बंदे के बारे में पता चला कि भाई जो हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं कि अगर कोई भी आदमी आपको हंसता हुआ नज़र आ रहा है, सो यू डोंट नो कि वो कितना पेन अंदर छुपा के रखा है या वो सहन कर रहा है. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज पॉडकास्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई टुडेज गेस्ट मिस्टर अंकुश कौल. सो हाय कौल साहब, क्या हाल चाल. बस प्रवीण भाई बढ़िया. सो फाइनली आपका वेंचर स्टार्ट हो गया. लेट्स, आपकी दुआ से डेफिनेटली बड़े भाई की दुआ होनी चाहिए हमेशा, इसीलिए स्टार्ट कर Thank you सकते so कोई much. भी नई चीज़. अभी आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो उसमें 2-3 चीज़ें मैं नोट कर रहा था. व्हेन यू सेड हमारे सीनियर है तो ऐसा बूढ़े वाली फीलिंग आ रही थी यार. नहीं, बूढ़े वाले नहीं, डेफिनेटली दैट इज जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट. आपने कभी वैसा जताया नहीं कि यू आर सीनियर ऑफ अस एंड समथिंग लाइक दैट, बट जो भी अपनी कॉन्वो हुई है हमने डेफिनेटली बोला है आप हमारे बड़े भाई जैसे हो, एंड अपना बॉन्ड भी वैसा रहा है. थैंक यू सो मच. So we'll start with the normal your story, like what you have faced in this particular thing. जब आपने मुझे स्टोरी बताई तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, डेफिनेटली मतलब नॉर्मली तो वैसे बहुत से लोग सुसाइड करते हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग मैरिजेस, बट जब कोई अपना करीब का कोई दोस्त अगर किसी इसी चीज़ से गुजर रहा है या कुछ पेन सफ़र कर रहा है, तो वो टाइम पे हमें रियलाइज़ होता है कि यार सच में ये पेन बहुत बड़ी चीज़ है. वरना नॉर्मली तो हम भी हंस के गुजार देते हैं कि हाँ ठीक है भाई, होगी स्टोरी. डेफिनेटली वी डोंट नो दैट पर्टिकुलर पर्सन किसकी गलती है, किसकी गलती की वजह से क्या हुआ है, कौन कितना सच बोल रहा है. बट जब अपने किसी करीब के साथ गुजरती है ये चीज़, तो वो टाइम पे हमें लगता है कि नहीं यार, एग्जैक्टली. एंड थैंक यू सो मच व्हेन यू शेयर्ड योर स्टोरी विथ मी, जिससे मुझे 2-3 दिन नींद नहीं आई कि भाई मेरे करीब का इतना अच्छा दोस्त जो हमेशा हंसते खेलते रहता है, वो भी इस तरह के पेन से गुजर चुका है. सो फॉर ऑडियंस, लेट्स स्टार्ट. वी वांट टू नो लाइक हु इज अंकुश. आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट योर स्टोरीज एंड एवरीथिंग विल गो इन द फ्लो. बट फॉर ऑडियंस, लाइक हु इज अंकुश? सो इट्स वेरी सिंपल यार प्रवीण. यू नो मी फॉर लास्ट 1 year, या राइट. हम लोग साथ में काम करते हैं, ऑफिस में रहते हैं, दिन भर मस्ती करते हैं. बिकॉज आई पर्सनली फील यार आप कहीं भी हो, थिंग्स हैव टू बी लाइट हार्टेड, राइट. आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर. I was born in Jammu and Kashmir, did my graduation from Bangalore, and then I moved to Mumbai in 2006. And I come from a typical middle class family, जहाँ पर हमारे को यही सिखाया गया था कि भैया पढ़ लिख लो, जॉब करना है, करियर बनाना है, शादी करनी है, 1 या 2 बच्चे होंगे, and then your life starts. You get a True. social status in society. आपको पता चलता है कि हाँ ठीक है, लोग आपके रिस्पेक्ट करने लगे हैं. मे बी बैचलर्स में आपको वो थिंग्स दैट यू कुड नॉट डू व्हेन यू आर बैचलर, आपकी एक फैमिली स्टार्ट होती है, एंड देन यू आर अ नोन पर्सन. शादी से पहले आप इंडिविजुअल हो, बट शादी के बाद यू बिकम अ फैमिली मैन. सो that's what my journey was. Born in a small middle class family, and we basically are the Kashmiri migrants who migrated from Kashmir during early 90s. Stayed in Jammu Kashmir till my 12th, did my hotel management in Bangalore. उसके बाद मैं मुंबई में शिफ्ट होके I started working for a bank, ग्रेट. and currently we are a colleague, so you know किस बैंक में काम कर रहा हूँ. डेफिनेटली अंकुश भाई. सो अभी जैसे आपने बताया आपकी बैचलर लाइफ के बारे में, सो आई जस्ट वांट टू नो लाइक कि जब आपकी शादी नहीं हुई थी, जब आप बैचलर थे, लाइक आई एम नाउ बैचलर, सो उस टाइम पे आपका शादी को लेके व्हाट वाज योर पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक आप क्या सोचते थे शादी के बारे में? यार प्रवीण देखो, ये ऐसी चीज़ है ना कि एक टाइम के बाद में कहीं ना कहीं आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है. जी. द प्रेशर स्टार्ट्स कमिंग फ्रॉम योर फैमिली, योर फ्रेंड्स. आप किसी भी पार्टी में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं अगर आपके बैचमेट्स या आपके फ्रेंड जो है मैरिड होने लग गए, जी. तो कहीं ना कहीं यू बिकम काइंड ऑफ केयर टेकर. बाकी कपल्स एंजॉय कर रहे हैं और मैं जाके केयर टेकर बनूं, उनके बच्चों को संभाल रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट मैरिड. द सेम हैपेंस विद योर कजिन्स, कि आप शादी में जा रहे हैं, सब बच्चे, सब कपल्स अपने मियाँ बीवी आपस में घूम रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं. एंड बीइंग अ बैचलर,
आपका रोल खाली एक ही रहता है, या तो सब अंकल आंटी को जाके नमस्ते करके आ रहे हो, एक कोने में बैठे हो, लोगों के फोटो में जाके यू आर स्पॉइलिंग देयर फोटो, या फिर आप उनके बच्चों के साथ खेल रहे हो। True. तो ऑब्वियसली द थॉट प्रोसेस वाज क्लियर फ्रॉम डे वन, एक बारी करियर उस लेवल पे आ जाए दैट आई कैन स्टार्ट माय फैमिली, आई कैन टेक केयर ऑफ अ रिस्पांसिबिलिटी, जी. and that's a time when I should get married. There is no package for the right marriage, it has to be proper age. Definitely. The thought process वही था, before I reach a certain age I should get married so that I can have my family, and by the time I retire मेरी next generation तैयार हो यार, वो job कर रहे हो जी. they should grow up in their careers, and simple इतना ही एक desire था। नाइस. तो आपकी जब मैरिज हुई, डेफिनेटली अभी जैसे आपने बताया, सो एज यू सेड लाइक कि द मैरिज शुड बी एट द राइट एज, सो योर वाज, एंड मैरिज में जब आप बात करते हो तो आपके घर पे एक डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है, राइट? घर वाले पहले आपको पूछेंगे कि भाई कोई देख रखी है या हमें देखनी है. सो व्हाट वाज योर कंडीशन दैट टाइम? आपकी लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी? लाइक थोड़ा सा आप उस पर अगर बता पाए तो. प्रवीण, मेरी मैरिज तो अरेंज मैरिज थी, बट फ्रैंकली स्पीकिंग कोई प्रेशर नहीं था। Okay. बाय द टाइम आई वाज अबाउट टू गेट मैरिड या मेरी मैरिज की एज हो गई, तो आई कम फ्रॉम अ वेरी लिबरल फैमिली, रेस्ड बाय सिंगल वुमेन, तो मम्मी का कभी ऐसा प्रेशर नहीं रहा। Okay. शी वाज वेरी क्लियर राइट फ्रॉम बिगिनिंग कि बेटा जहाँ खुश रह सको वहाँ शादी करना, कोई है तो ले आओ, विल एक्सेप्ट हर। बट देन इवेंचुअली सिंस आई डिड नॉट हैव एनीवन, तो एट टाइम्स हैविंग नो ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, सो इट वाज एन अरेंज मैरिज। सो जैसे अभी आपने बोला अंकुश भाई, आपके पास डेफिनेटली वो टाइम पे कोई था नहीं, सेम कंडीशन से मैं भी गुजर रहा हूँ, सो आई एम ऑल्सो लाइक ऑन पेरेंट्स, आप ही ढूंढिए अगर आपको बहू चाहिए तो। सो आपका जो अरेंज मैरिज का जो स्टार्ट हुआ प्रोसेस, लड़कियां देखने आती है, डेफिनेटली आप भी बहुत सारी लड़कियों को देखने जा रहे हो, सो उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताइए, मतलब लाइक हाउ यू फाउंड योर अरेंज मैरिज पार्टनर। सो प्रवीण भाई, हमारे इंडियंस में अगर आप कल्चर में देखोगे तो नॉर्मल इट इज सेड कि मैरिज इज नॉट बिटवीन द टू पीपल, इट्स बिटवीन द टू फैमिली। ट्रू। बट ये काफी कम बोला गया कि शादियां करवाने वाला बीच में एक बिचौलिया होता है। जी। तो जोड़ियां बनती है आसमानों में, लेकिन मिलाते हो बिचौलिया, जो कोई एक आधा रिश्तेदार आपका ऐसा मिल जाता है जो कहीं ना कहीं जिसकी दूर की कोई रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड की बेटी हो या जी। बेटा हो, तो आपको मैच मिल जाता है। तो सोसाइटी में, हमारे रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल में, पेरेंट्स के कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा होता है जिसकी किसी दूर के रिलेटिव की शादी जी। नहीं हुई है या होने वाली एज हो गई है आपकी जी। तरह। तो दीज पीपल एक्ट एज अ मिडिल मैन। मोस्टली आंटियां रहती हैं जिनको तो यही पड़ी रहती है किसकी शादी कब होने वाली है, किससे करवा दें। ट्रू। तो मैच मेकिंग का काम थैंकफुली इंडियन कल्चर में बहुत इजीली हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग चैलेंज। सो मेरे केस में भी सिमिलर स्टोरी थी। एक मम्मी की क्लोज फ्रेंड थी, वो रिलेशन लेके आई, एंड एक और चीज़ होती है कि कुंडली मैच होना। आई डोंट नो हाउ ट्रू इज दैट, कितना मैच होता है। जैसे मैं एथिस्ट होने के बाद हमेशा अपनी मॉम को कहता था कि यार राम और सीता की तो जोड़ी सबसे बढ़िया मिली थी, लेकिन 14 साल का उनका बनवास था, दे नेवर हैड अ गुड मैरिड लाइफ। तो समथिंग सिमिलर आई केप्ट टेलिंग माय मॉम कि यार देखो, जो लोग लव मैरिज करते हैं उनकी तो कोई कुंडली मैच नहीं होती। तो इफ अ मैरिज इज मेड इन हेवन, अगर दो लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छा है, एंड आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट इट इज अबाउट रिस्पेक्ट। जी। लोग कहते हैं कि रिलेशन में प्यार होना चाहिए, यू हैव टू हैव अफेक्शन, बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट इज व्हेन यू हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, ट्रू, फॉर ईच अदर्स डिसीजन, फॉर ईच अदर्स करियर, फॉर ईच अदर्स नेचर, बिहेवियर, फैमिली। अगर वो रिलेशन में आपके ट्रस्ट नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो आई डोंट थिंक इट्स अ राइट मैच। बट मेरे केस में वो नहीं था। इनिशियली वी स्टार्टेड ऑन अ गुड नोट, देयर वर सर्टेन क्राइटेरियाज जो कि दोनों ने एक दूसरे डिस्कस किए, एंड बोथ द फैमिलीज आर ओके, एंड देन दैट्स हाउ वी गॉट मैरिड। ग्रेट। सो उसके बाद जैसे अभी आपने बताया कि आपकी मैरिज स्टार्ट हो गई, राइट, डिस्कशन स्टार्ट हो गया, यू गॉट मैरिड। सो हाउ वाज योर लाइफ आफ्टर मैरिज? सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे होता है कि जो लव मैरिज है उसमें तो यू नो योर पार्टनर वेरी वेल, बट इन अरेंज मैरिज लाइक यू डिस्कस विथ योर पार्टनर, कुछ चीज़ें डिस्कस होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हम आके फिर बाद में भी फाइनलाइज कि हाँ ठीक है, नाउ इट इज़ वेरी गुड टू गो टू वीकेंड मैरिड। सो हाउ वाज योर लाइफ आफ्टर मैरिज? See, Praveen, if you ask me, that's a golden era of any relationship. राइट। When you try to know someone, that happens in case of a love marriage also, but ये होता है डिफरेंस बिटवीन लव एंड अरेंज। कि लव में आप 1-1.5 साल पहले वो कोर्टशिप कर चुके होते हो, यू हैव डेटेड समवन एंड यू नो दैट पर्सन इन एंड आउट, व्हिच वुड बी अ रॉन्ग थिंग टू से, बिकॉज औरतों को पहचानना यार, मतलब सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा जी नहीं पहचान पाए। जी। बट समहाउ यू नो द चॉइसेस, राइट। आपको पता है कि इनका नेचर क्या है, व्हाट आर द फूड चॉइसेस, बिहेवियर्स, behavior, also the patterns at times.
अरेंज मैरिज में वही चीज़ आके आपका आफ्टर यू गेट मैरिड एंड यू स्टार्ट स्टेइंग टुगेदर, इनिशियली बहुत अच्छी लगती है चीज़ें, यू ट्राई टू एडजस्ट विद एवरीवन Right. एंड इस पे आई रिमेंबर देयर वाज सम डिस्प्यूट couple of days before my marriage, and I was seriously thinking yaar whether I should go in this marriage or not. And that's where when my brother stepped in, he said Ankush देख ऐसा होता है ना कि every marriage is a lot of compromise from both the sides. True. Initially तुम लोग को एक दूसरे की चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी and then you will have disputes. तुम्हारा कमरा है, you will say कि मुझे green curtain चाहिए and भाभी जी को yellow चाहिए होंगे, जी. right? And you say कि नहीं मुझे एक्स पसंद है खाने में, मुझे चाइनीज पसंद है, शी विल हैव इटालियन. और एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि वो 1-1.5 साल का फेज होता है. इट इज गुड, इट इज बैड, इट इज अगली, बट इफ यू रिस्पेक्ट ईच अदर्स डिसीजन, इट कैन नॉट बी एक बंदे की नहीं चल सकती रिलेशनशिप में. Definitely. वहां पर 1-1.5 साल के बाद ऐसा होता है कि उसको येलो पसंद है, मुझे ग्रीन पसंद है, तो आपका मिक्स एंड मैच होकर येलो और ग्रीन ऑटोमेटिकली आने लगता है. True. एंड दैट्स वेयर थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस. तो वो 1-1.5 साल जो होता है बहुत क्रूशियल होता है. अनफॉर्चुनेटली मेरे केस में वो 1-1.5 साल का ब्रेक ही नहीं रहा, because there was some other, I won't say ill intention, but there was something wrong terribly in both of us. Right. So as you mentioned, like कि आपका जो शादी के बाद वाला जो पीरियड था, right, that was not, I mean, as you mentioned, 1-1.5 साल रहता है कोई भी शादी के बाद, where you started knowing the person whom you got married, mostly in the arranged marriage cases. That person is starting learning about you, आपके choices क्या है and everything. But as you just mentioned कि आपके पीरियड में that was like वो बहुत लंबा पीरियड नहीं था. So I just want to know like what was, I mean, if you would like to share on the personal note, like what was the reason or what was that one thing which started this discussion? See प्रवीण, मेनली आपके जो भी अगर आप रिलेशनशिप में देखोगे जहाँ जी. नेगेटिविटी आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इन्फ्लुएंस ऑफ अ थर्ड पर्सन. सो व्हेन आई Definitely. से थर्ड पर्सन, एक कपल के बीच में इवन द पेरेंट्स आर थर्ड पर्सन. जी. चॉइसेस नहीं मिलती हैं, दैट्स ओके, यू टू आर इंडिविजुअल्स. मैंने Yeah. काफी जगह ऐसे देखा है जहाँ मेरे कजिन्स के फ्रेंड्स के ट्विंस किड्स हैं, दे कैन नॉट बी सेम. उनको सेम खाना मिला है, सेम कपड़े मिले हैं, सेम एजुकेशन मिली है, सेम पेरेंटेज मिली है, बट देयर नेचर आर टोटली डिफरेंट. यू हैव टू अडैप्ट टू दैट नेचर. True. आपको कहीं ना कहीं, एज आई सेड, देयर हैज टू बी अ कॉम्प्रोमाइज एंड इट हैज टू बी फ्रॉम बोथ द साइड्स. जी. सो अगर आप पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन, तो इसका एक सिंपल आंसर रहेगा कि आप उस इंसान को जगा सकते हो जो सोया हो, उसको नहीं जगा सकते जो सोने का नाटक कर रहा हो. Perfectly said. No, definitely both the parties should like understand this thing and definitely take this thing ahead. जैसे अभी जस्ट आपने बोला कि if you are in relationship or after marriage, any kind of relationship, जहाँ पे दो जन के बीच में कोई तीसरा आ जाए, it can be anyone, your friend, family, anyone. So वहाँ पे चीज़ बिगड़ जाती है. और मोस्टली इसी चीज़ पे अभी जैसे कि अगर हम बात करें हमारे पेरेंट्स की, राइट, सो हमारे पेरेंट्स के एज में मतलब जब उन्होंने शादी करी थी, सो हम अपने पेरेंट्स से ये सुनते कि भाई हमें तो हमारी माँ ने यही बोला था कि आपकी सासू माँ जो बोलती है या आपके इन लॉज जहाँ पे आप शादी करके जा रहे हो वहाँ के तौर तरीके सीखो और उनके हिसाब से आप चुको. समटाइम आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी. डेफिनेटली बॉयज़ के लिए भी इट इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट कि आपके घर पे कोई नया बंदा आ रहा है. सो इट इज़ नॉट ऑलवेज फ्रॉम दी गर्ल्स पर्सपेक्टिव या फिर वुमन पर्सपेक्टिव, आई कैन से कि उनको ही मतलब जैसे कि आज की डेट में बोला जाता है कि सारी अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रोमाइज़ ये सारी चीज़ें हम गर्ल्स ही करता है. सो अंकुश भाई, अभी हम डिस्कस कर रहे थे राइट कि आपकी जो लाइफ आफ्टर मैरिज जो थी, सो दैट वाज लाइक नॉट फॉर सो लॉन्ग पीरियड, राइट. सो जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड ऑन द पार्ट लाइक हु इनिशिएटेड द टॉपिक ऑफ सेपरेशन, लाइक हु इनिशियली come up front and like कि भाई अभी नहीं रहना है, it is like enough of whatever is going on that time. So basically, what we are trying to say कि कैसे ये initiate हुआ, that we Right. cannot. See Praveen, at times there can be two good people but not good enough for each other. Right. And as a human, कहीं ना कहीं you get that intuitions. Things are not working between us. And in most of the cases, maybe due to societal pressure or maybe you can say हम लोग normally इतना बुरा गलत कभी सोचते नहीं. Like for that matter, कोई भी इंसान घर से गाड़ी लेके निकलता है, ये नहीं सोचता कि उसका एक्सीडेंट आज होने वाला है. It can happen, it can not happen, right? आप 2 लाख किलोमीटर गाड़ी चला रहे हो, कुछ नहीं हुआ है, but all of a sudden एक दिन घर से बाहर निकलो और आपने दीवार पे गाड़ी ठोक दी. The same is about a marriage. आपकी चल गई तो you both are very lucky कि काफी टाइम तक चल गई.
एंड इन दिस केस मोस्टली व्हेन वी से कि रिलेशनशिप बचाने की किसी ने कोशिश करी, तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स बिटवीन यू टू दैट यू हैव टू ट्राई टू सस्टेन, राइट? एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, इफ यू डेट समवन और आप अपने पेरेंट्स से उसको मिला रहे हो, एट द बैक एंड आपको पता है, यू नो, आपको कहीं ना कहीं आप दोनों के झगड़े होते हैं, हर रिलेशन में होते हैं, बट आप अपने घर वाले जब पूछेंगे नेचर कैसे है, तो आप ये नहीं कहोगे यार हर दिन मेरा कान खा जाती है, या यू नो ये लड़का है मुझे तो पसंद है लेकिन ये यार ये ड्रग्स बहुत लेता है, या ये दारू बहुत पीता है, या स्मोक बहुत ज्यादा करता है, राइट, एनी नेगेटिव थिंग। हाँ, तो वी हाईलाइट ओनली द गुड थिंग्स। यू नो मम्मा लड़की को डेट कर रहा हूँ, बहुत केयरिंग है, यू नो उसका ऐसा है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है, शी इज करियर ओरिएंटेड, यू नो everybody in society loves her, you know the way she carries herself, or it can be any reason जी। एंड जब रिलेशन खराब होने लगता है प्रवीण भाई, तो जब कहीं पर नेगेटिविटी आती है ना, एक जैसे अगर आप एक फ्रूट देखोगे, फ्रूट में भी एक दाग लगता है ना, तो उसके बाद वो पूरा सड़ने लगता है, राइट? वो उसके बाद शायद अगर आप उसको उस टाइम पे कंज्यूम ना करो तो खत्म हो जाता है, 2 दिन के बाद आप उसी एक एप्पल को देखो, इट बिकम्स कंप्लीटली रॉटन। रिलेशनशिप में वैसे ही होता है, एक बार जब स्टेन्स आ जाते हैं एंड आप उसको वहां पर क्लीन नहीं करो देन एंड देयर, तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा रॉटन रिलेशनशिप बन सकता है, विच कैन इम्पैक्ट यू मेंटली, फिजिकली, सोशली, एंड इट कैन ड्रेन यू लाइक एनीथिंग। क्योंकि आप दिन भर ऑफिस में दुनिया की हसल में चल रहे हो, आपको पैसा कमाना है, करियर बनाना है, यू हैव टू डील विद मल्टीपल पीपल, नो बीट ऑन द कवरेज साइड, क्लाइंट साइड और योर कलीग्स, राइट। फियर्स कंपटीशन है, राइट? वो पहले के टाइम का नहीं है कि आपके एक स्कूल में एज अ लेक्चरर आपका जॉब लग गया है, कॉलेज में लेक्चरर, स्कूल में टीचर या प्रोफेसर, एंड आप सुबह 9 से 2 बजे तक स्कूल जा रहे हो, वही आपको डेली पढ़ाना है, शाम को आपने प्रैक्टिस कर ली, एवरीथिंग इज मोनोटोनस, एवरी क्लाइंट इज अ डिफरेंट क्लाइंट, यू नो एवरीथिंग दैट यू डू इन ऑफिस इज नॉट अ सिमिलर वन, रेप्लिकेशन नहीं है जी। वैसे ही रिलेशनशिप में होता है, देयर इज नथिंग मोनोटोनस, यू हैव टू इवॉल्व एवरी सिंगल डे, राइट। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, जहाँ कहीं ऐसे लूप होल जहाँ पर हमें लगने लगा कि रिलेशनशिप खराब हो रही है, यू नो पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी, आई वाज नॉट बीइंग माई सेल्फ, क्योंकि इफ अगर आप यार आप घर से ही सुबह निकल रहे हो विद दैट माइंडसेट कि आपके लाइफ में कुछ रात को खराब हुआ है, या अर्ली मॉर्निंग आपका डे इज नॉट स्टार्टिंग ऑन अ गुड नोट, राइट? यू डोंट गेट दैट फीलिंग द एंटायर डे। मेरा काफी टाइम से आई एम ऑन मेडिकेशन, आई एम अ डायबिटिक, you know I got diabetes when I was 31, so but I have a problem that, you know, the first cup of tea that I have in the morning, it has to be with sugar, okay, and मेरी morning की आप you don't give me anything during the day, I'm fine with it, but मेरी जो पहली चाय का कप होता है ना, it has to be perfect, उसमें आधा दूध आधा पानी और whatever my you know preferences वो चाहिए जी। Likewise वैसे हम coming back to the point, let's not deviate, कि हम जब रिलेशनशिप में होते हैं, यू नो पीपल कुड सी दैट फ्रॉम माय फेस दैट आई एम गोइंग थ्रू सम ट्रबल टाइम्स, बट आप यू डोंट टेल पीपल अपने पार्टनर की बुराई, क्योंकि हमने कुछ पॉइंट पहले ये डिस्कशन किया था कि यू नो एक थर्ड पर्सन जब मैरिज में आता है तो वो वहीं से इट स्टार्ट्स टाइंग इट्स डेथ, एग्जैक्टली, राइट। तो यू नेवर वांट योर फ्रेंड्स, क्योंकि मे बी और मे नॉट बी आपका रिलेशनशिप जो है विद योर पार्टनर, विद योर स्पाउस, विद योर हस्बैंड वाइफ, आज नहीं तो कल ठीक हो सकता है। लेट्स नॉट गो इनटू द चांसेस कितने परसेंट है, वो 1% है 99 है, कई बार 1% 99 पे भारी पड़ जाता है, बट देन यू नो दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि यार अगर आज मैं तो सपोज आई एम हैविंग सम ट्रबल्स इन माय रिलेशनशिप विद माय ब्रदर और मे बी मदर और मे बी माय गर्लफ्रेंड और वाइफ, एंड आई कम एंड स्टार्ट क्रिबिंग प्रवीण भाई के साथ कि प्रवीण भाई यार ऐसा ऐसा हो गया यार, ये चल रहा है घर में, डाउन द लाइन 3 months 4 months 5 months मेरा रिलेशन ठीक हो जाएगा जी, बट आपने जो किस्से सुन रखे हैं जी, आपने जो हैरेसमेंट सुन रखी है, अगर मेरे साथ कोई हुई है तो कहीं ना कहीं यू विल हैव दैट नेगेटिव थिंकिंग अबाउट माय पार्टनर फॉर दैट थर्ड पर्सन, या एग्जैक्टली, तो वो हो जाता है, तो ये चीज कभी बीच में नहीं आई, एंड आफ्टर आई थिंक barely 5 to 6 months we decided that we are not meant for each other and we have to separate our ways, but कहीं ना कहीं उसके बाद भी kept trying for a year, राइट, जहाँ यू नो जो ट्राई था वो एक साइड से थोड़ा कम था, एक साइड से थोड़ा ज्यादा था जी। Having said that, you know, किसी भी केस में अगर आप what you see is also not true. Definitely. आज आप मेरे से बात करें तो मेरी वर्जन आप सुनेंगे, मेरी स्टोरी सुनेंगे तो it has one chapter. Right. आप जब दूसरे वाले की सुनेंगे तो आपको कई ऐसे पन्ने मिलेंगे जिसपे कुछ और लिखा है, True. या कहीं पर करेक्शंस हैं, राइट? जी जी। तो विदाउट बायस अगर हम देखें तो every story has the failures, कहीं ना कहीं कुछ होता है, but after a point you realize that, you know, अब इसमें कुछ बचा नहीं है,
So You have from long. from family perspective, like as you mentioned कि आप लोगों ने try करा as a couple, right, as a partner. So उस time पे like when you finally decided कि भाई ठीक है, now we are not meant for each other and we are going to get separate, right? So वो time पे what was your I mean what was your family's thought on this or other family? Like I call both the family, right? I don't call in-laws or something like that. No, it is Once family. Praveen, exactly. It is family. Once it got married, then from both the side it is family only. So from family side, like no one, I mean, have any, I mean, have anyone came up front and they tried to explain you or you can say effort लिए किसी ने from family side to keep this relationship प्रवीण going. देखो एफर्ट्स दोनों साइड से रहे. जी. आई विल नॉट से बहुत ज्यादा, बट फ्रैंकली स्पीकिंग, सिंस वी वर स्टेइंग इन माय हाउस, you know, my parental house, I currently stay with my family, with my Right, brother, right. and हम लोग शुरू से साथ में रहते हैं. I used to stay in my brother's house. इंटरवेंशन जितना होना चाहिए था अप टू सम एक्सटेंट. यार आप सामने वाले को अगर अलाउ भी नहीं कर रहे हो अपने पर्सनल स्पेस में, आपको कोई सामने से जबरदस्ती नहीं कर सकता, राइट? एंड जब अपोजिट साइड से आप किसी को बुला रहे हो और आपने अपना वर्जन सुना रखा है, तो वहां पर मोर देन यू नो रिकंसिलिएशन, आई वोंट से कंप्रोमाइज, आपका रिकंसिलिएशन से ज्यादा, रेस्यूट से ज्यादा, सामने वाली पार्टी अगर आपको ये हर चीज पे ब्लेम किए जा रही है, यू नो, इट कैन बी अबाउट योर फैमिली, about your friend circle, about your habits, about your job, your you know, आपके जो भी एस्पिरेशंस है लाइफ में. यार देखो, ह्यूमन टेंडेंसी है प्रवीण, यहाँ पर आप अगर सांप के सामने भी चले जाते हो ना, इट्स नॉट जस्ट ह्यूमन, एनीथिंग लिविंग, आप सांप के सामने भी चले जाते हो और आपके हाथ में कुछ है ना, तो सांप भी अपने को बचाने के लिए आप पे अटैक करेगा, राइट? या अपना सर पीछे खींचेगा. तो द मोमेंट यू कम इनटू अ सिचुएशन जहाँ पर आपके ऊपर सभी ब्लेम्स डाले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी फोकस शिफ्ट होता है. यार देखो, एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये रहता है कि भाई नहीं, अगर इफ यू आर ट्राइंग टू पुट मी डाउन, आई विल नॉट लेट इट हैपन. डेफिनेटली. एंड दैट्स वेयर, यू नो, दैट्स व्हाट आई कीप सेइंग ऑलवेज, कि आपका जहां पर भी एक रिलेशनशिप में ईगो आ गया, ट्रू, सो वो आई वोंट से इम्पैक्ट नहीं था या इफेक्ट नहीं था या किसी का अटेम्प्ट नहीं था. अटेम्प्ट जो था दैट वाज ऑन अ नेगेटिव साइड. और आप जब कोई चीज, कोई रिलेशन नेगेटिव से या झूठ से स्टार्ट कर रहे हो, इट विल नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग. नो, वो रेस्ट्यूट अगर स्टार्ट होता ऑन अ नोट कि सामने वाले को रेस्ट्यूट करना था रादर देन प्लेइंग ब्लेम गेम, गलती मे बी आई वोंट से कि कंप्लीटली उसकी थी और शी कैन नॉट से कंप्लीटली मेरी थी, राइट? बट अगर आप एक ही बंदे की गलती निकालते रहो, ट्रू, तो यार यू कैन, आप एक लकड़ी को उतना ही मोड़ सकते हो जितना वो टूटे ना. डेफिनेटली, डेफिनेटली. सो इसके बाद जैसे कि अभी आपने बताया, राइट, सो आफ्टर, आई मीन दिस वाज योर फेज वेयर यू आर trying to keep the relationship, right? Your phase where your families tried to keep the relationship, you were trying, both the people were trying, right? But unfortunately वो रहा नहीं. So but as we discussed, right, apart from this podcast, like we haven't discussed yet about this situation or a period, right? You mentioned you got married in 2015, right? But finally after that there was some obligation on you. एंड ये चीज़ें मतलब डेफिनेटली अगर कोई रिलेशन मुझे एंड भी करना है, सो बहुत से बार ऐसी चीज़ें होती है कि इट इज़ एंडिंग ऑन अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है भाई, हमें नहीं जम रहा है, हम ख़त्म करते हैं, राइट? बट नाउ डेज लाइक आई लाइक टू हाईलाइट दैट पार्ट, राइट? अगेन कम बैक टू द टॉपिक वेयर माई मोटो टू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट वॉज लाइक आई वॉन्ट लाइक द men, आई एम नॉट ओनली द men but definitely a person who is suffering from the wrong marriage is attempting a suicide, right? He's going to that particular level because he is getting all this problem. मतलब वो इतना थक चुका है उस चीज़ से कि वो सोचता है कि उसके बाद मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं. एंड ये सारी चीज़ें इसीलिए होती है बिकॉज नो वन या फिर वन पर्सन फ्रॉम बोथ द पार्टी, बोथ द पार्टनर इज नॉट रेडी टू एंड एनी रिलेशनशिप ऑन अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, राइट? सो इस चीज़ पे आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम योर साइड, लाइक इन योर केस, डेफिनेटली अगर आप बोल रहे हो कि पर्सन इज गुड, बट डेफिनेटली बोथ द पर्सन इज गुड बट नॉट गुड फॉर ईच अदर, राइट? सो इट शुड बी एंड ऑन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पार्ट. बट एज यू मेंशन, लाइक वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर अपार्ट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, दिस पर्टिकुलर द सेपरेशन जर्नी पूरी 6 से 7 साल तक चली. तो आई जस्ट वांट टू, आई मीन इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट ऑन दैट पार्ट, लाइक. बहुत ड्रेनिंग है प्रवीण,
बिलीव मी, यू नो, सो हमारे जम्मू में एक कहावत चलती है, जिस तन लागे सो तन जाने. Okay. एंड यू नो, अंडरस्टैंड अ पर्सन कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जिसने पुलिस स्टेशन एक्सेप्ट फॉर हिज पासपोर्ट इंक्वायरी कभी देखा नहीं था. जी. एंड ऑल ऑफ अ सडन देयर कम्स अ टाइम इन योर लाइफ जब आपको हर तीसरे दिन पुलिस स्टेशन में जाना पड़ रहा है. एंड वाइल इट इज सेड, हमारे लॉ में काफ़ी क्लैरिटीज हैं, यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, बट ऐसा होता नहीं है. द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ द कोर्ट, आई डोंट नो लोगों की क्या थॉट प्रोसेस रहती है. आई टेल यू माइन. मैं दिल्ली में साकेत कोर्ट में आई वाज गोइंग थ्रू माय लीगल जर्नी, जी. एंड women cell in somewhere in Saket. And the first time I was leaving, it was जून जुलाई का महीना था. Coming from Bombay, जहाँ पर हमारे पास ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं होते, but I remember I purchased a sweatshirt with a hoodie. Because मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा था. I know कि किस मैटर में मैं गया हूँ. जी. But people looking at me outside, they will not know. उनके लिए शायद मैं एक रेपिस्ट, एक चोरू चक्का, जेब कतरा हो सकता था. जी. Right? They will see, अरे सारा जेल से, पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया. Right. So with that guilt, you know, I started and I was walking out of that police station. मैं जैसे ही उनके वहाँ से बाहर निकला, मैंने वो हुडी अपने शर्ट के ऊपर पहनी, covered my entire face, sat in an auto. I said चांदनी चौक ले चलो. जी. ऑटो में बैठा, ऑल ऑफ अ सडन एक जगह मैंने साइड पे रोकने को बोला बंदे को, वहाँ उतरा, रिवर्स साइड वॉक करके गया, एंड आई गॉट इन अनदर ऑटो. एंड समवेयर इन, आई थिंक महरौली के पास में किसी अचानक से गली में घुसा. वहाँ पर मैंने वॉक करते हुए, जैसे मूवीज में आप देखते हैं, अपनी हुडी उतारी, एंड देन आई वाज एबल टू वॉक नॉर्मल, बिकॉज आई डिडंट वांट टू फेस पब्लिक. Right. यू नो कि क्या जा रहा है, लेकिन यू नो पीपल वुड नॉट नो कि किस मैटर में आप, किस चैप्टर में आप गए हो. दैट वाज काइंड ऑफ माय यू नो थॉट प्रोसेस दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ऑब्वियसली दिस कैन नॉट हैपन फॉर लॉन्ग. एक टाइम के बाद आप समझ जाते हो कि यू नो दिस इज ऑल नॉर्मल. If you go back in that era, 2015, 16, 15 I got married, 16 में start हुआ था, precisely you know during the time of demonetization. So उस time में और आज में बहुत फर्क है. You know, उस time पे to tell people that you are separated was a taboo. Yeah. And आज अगर आप किसी से बात करते हैं तो ऑफिस में आपको पता लगता है या आपको सोसाइटी में पता लगता है, 10 में से 2 लोग या 3 लोग उसमें जा रहे हैं. जी. And it is very unfortunate. जैसे अभी recently आपने देखा अतुल सुभाष attacking in Bangalore, he lost his life. Since childhood, you know, मेरे mind में भी ये thought आया था. Oh. So let me tell you one thing. The day I got मेरा settlement का हुआ था out of 4-5 cases in Delhi. So there was a huge amount which I was supposed to pay because there were a lot of claims. काफी कुछ बोला जाता है. Again, you know, our law is not black and white. It's in grey. Right. हमारा लॉ में अगर ये बोला जाता है कि डॉवरी लेना और देना बैन है, तो जब आप मैरिज डिस्प्यूट्स में आते हैं, यू नो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट फ्रॉम द फीमेल साइड. Okay. मेरे से डॉवरी में ये ले लिया गया, यू नो इवन द गिफ्ट्स दैट आर क्लेम्ड आर रिटन एज डॉवरी. Oh. सो आई विल शेयर कपल ऑफ द इमेजेस विद यू. मेरे जो नोटिस में था, एक पर्टिकुलर हमारे यहाँ पर एक रस्म होती है जहाँ पर जिस दिन हमारी शादी होती है, फेरे होते हैं, उस टाइम पे जो लड़के का मामा होता है उसे शगुन में मिश्री दी जाती है गले में. Okay. इट्स कॉल्ड ऑस्पिशियस. मिश्री दी जाती है. बट इन माई डिवोर्स नोटिस इट वॉज रिटन एज 10 kg शुगर पॉट Oh. एज अ डॉवरी आर्टिकल. एक मामा को दिया जाता है, 2 मामा को लिखेगी. Okay. इवन द गिफ्ट्स थ्रू फैमिली मेंबर्स, जब आप घर पे आते हैं, देयर आर सर्टेन प्लेजेंटरीज दैट यू एक्सचेंज. किसी को आपने 5 ग्राम का गोल्ड का रिंग दे दिया, किसी को जी. आपने टॉप्स दे दिए. एवरीथिंग इंक्लूडिंग हमारे यहाँ एक कस्टम होता है. आई गॉट मैरिड, सब फेरे वगैरह खत्म हो गए, बारात वगैरह सब हो गई, जी. एंड देन लड़की हमारे घर पे आती है. मोस्टली हमारे यहाँ नाइट में शादी होती है. अर्ली मॉर्निंग हम लोग कहीं आते हैं एंड जो भी हमारी कुल देवी या देवता हैं, कहीं मंदिर में रुक के छोटा सा एक फॉर्मेलिटी होती है, वो कंप्लीट करने के बाद लड़की के साथ में उसके 1 या 2 छोटे कजन्स आते हैं. Okay. या भाई बहन हो तो दे कैन कम. एंड यहाँ पर फ्रॉम द ग्रूम साइड, जो लड़के वाली साइड है, उसकी फैमिली सिस्टर्स हो तो वेरी गुड, अदरवाइज भाभी हैं जी. या कजिन्स, फीमेल्स ऑब्वियसली, Females. Right. अलॉन्ग विद द मदर, अगर वो आना चाहें तो वो लड़की को लेके जाते हैं इन अ चेंजिंग रूम. वहाँ पर टॉप टू बॉटम, राइट, योर ज्वेलरी, एवरीथिंग दे रिप्लेस इट Okay. फ्रॉम योर क्लच, जो भी उसको पहनना है, Everything. Whatever साड़ी she हो is या wearing. सलवार सूट हो, Right. you know, including their footwear to everything, inner garments also. Right. They change it and
एक ससुराल वाले अवतार में लेके आते हैं। ओके तो आप पूरे रिलेटिव से मिलाते हैं, दिन भर उनका वो रहता है, जी। लड़की बैठी, इवनिंग में हम लोग उनके साइड में जाते हैं लड़के को लेके, ओके एंड द सेम थिंग रेप्लिकेट्स। अंडरस्टूड। सो फ्रॉम द ब्राइड साइड उनके फादर या उनके ब्रदर जो भी हैं या कोई एल्डर जीजू हैं, मेल सो दे विल टेक मी टू अ रूम जहाँ पर एक सूटकेस या बैग तैयार किए हुए हैं, जहाँ पर राइट फ्रॉम माय सॉक्स टू अंडरगारमेंट्स टू हैंकरचीफ सब कुछ दिया जाता है, जी which is a ritual. It is not dowry राइट and it is given from both the sides. Right. मेरे डिवोर्स नोटिस में वो भी लिखा था, हैंकरचीफ सेट ऑफ 3, अंडरगारमेंट सेट ऑफ 2, which means undershirt and underwear. Right? So कहीं ना कहीं आई वुड से अगर लॉ ये चीज बोलता है प्रवीण कि डाउरी देना और लेना क्राइम है, जी फ्रॉम द फीमेल साइड आप इतना बेदर्दले से बोल रहे हो मुझसे लिया गया है, जी तो व्हाई डिड नॉट कोर्ट आस्क द क्वेश्चन टू द फीमेल साइड? ट्रू कि whatever See, gifts you have, why I'm saying yeah. this, it is not to gain sympathy, but to understand the entire objective of this discussion is to bring gender neutrality, right? Right. आप gender neutral चाहते हो। पास्ट में अगर आप सेक्शन 498A की बात करें, which is अपना डोमेस्टिक वायलेंस, राइट? डोमेस्टिक वायलेंस को क्यों लेके आया गया? क्योंकि देयर वाज अ टाइम जबकि सोसाइटी में काफ़ी सारी लड़कियों के साथ शोषण हो रहा था। Right. यू वुड हियर ऑल ऑफ अ सडन लड़की ने फांसी लगा दी, जो शायद कई बार इन लॉज उसको लगा देते हैं, सुसाइड जी। का क्लेम आता था। जी किचन में अचानक से कुकर फट गया, True. गैस बर्स्ट हुआ, राइट? दीज थिंग्स स्टिल हैपन इन सोसाइटी, yeah बट द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज केम विद द रूल कि ठीक है, देयर इज अ सेक्शन 498 दैट विल प्रोटेक्ट देयर राइट्स। right इवेंचुअली जितनी भी एट्रोसिटीज फीमेल के साथ हो रही थी, नाउ यू आर इन द एरा जहां पर वो टोटली टर्नओवर हो चुकी है। true द मोमेंट आपके ऊपर ऐसा कुछ आपके ऊपर ना है, हम जस्ट टेलिंग जैसे मेरे साथ हुआ, राइट? ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आता है, द एंटायर सोसाइटी, एंटायर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, दे आर लाइक ईगल। गिद्ध होते हैं ना कि जहाँ लाश दिख गई उसके ऊपर मांस निचोड़ के खा जाते हैं। जी सो दे नो कि यहाँ से, बिकॉज योर करियर, योर फ्यूचर, योर लाइफ, एवरीथिंग इज ऑन स्टेक। yeah आप पे चार्जशीट फाइल हुई, यू माइट लूज योर जॉब। true आप इंडिया से बाहर अगर जाना चाहते हैं, कोई आपके करियर में स्कोप है, आपका पासपोर्ट कन्फिस्टिकेट हो सकता है। true आप पे केस चल रहा है, यू कैन नॉट लीव द कंट्री। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी जॉब की अच्छी आ सकती है, विच आई गॉट इन IT कंपनी वंस एंड आई वाज सपोज्ड टू ट्रैवल टू अफ्रीकन कंट्रीज। आफ्टर हैविंग एवरीथिंग, मैंने उसमें ईमानदारी से लिख दी, यस देयर आर सर्टेन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, देयर आर सर्टेन कोर्ट प्रोसीडिंग गोइंग ऑन अगेंस्ट मी, yeah and there was no further discussion. I lost the job opportunity, right? So ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं, बट वन हैज टू अंडरस्टैंड जो एट्रोसिटीज आज से 20 साल 30 साल पहले फीमेल्स पे हो रही थी, नाउ इट इज रेप्लिकेटेड ऑन द मेल साइड। true अभी दिल्ली में कैफे ओनर ने सुसाइड किया, जी citing the dowry. He was asked for a lot of maintenance. जी At the same time, अतुल सुभाष ने किया है। काफी सारे केसेस ऐसा हुए हैं जहां पर हमने कैंडल मार्च प्रोटेस्ट किए हैं when certain atrocities have happened with the female. right But you hardly see people coming towards या ऐसा कुछ होना for a man. So aren't we going towards the complete opposite? definitely और आदमी की आवाज सुनने के लिए see there are rules, there are laws that protect a female. अगर आप 498 देखेंगे तो वो फाइल होते हैं CWC में, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड विमेन। Is there any law that supports men? I haven't heard yet You will not hear, yeah at least as of now. And luckily we are in a stage जहाँ पर social media is very active. exactly While a lot of negativity comes from it, but you have to give credit also to social media. जी Recently there is some minister from BJP, Dinesh Sharma, जिन्होंने कैबिनेट में ये मुद्दा उठाया है कि men should also have, there should be gender equal laws. exactly It cannot be same. yeah It cannot be for one sided. It cannot be only for females. definitely Praveen, you can also Google, अगर हम लोग मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से बाहर आके भी बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट जेंडर न्यूट्रलिटी। ये क्यों नहीं है? जी हैविंग a situation जहाँ पर एक कंट्री में रेप हो रहा है, that shows your country is not safe. right But we are in a country जहाँ पॉपुलेशन 140 करोड़ है। ऑफ लेट हमने काफ़ी सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर you talk about निर्भया in early 2010s, right? We saw निर्भया, ऐसे काफ़ी सारे केसेस होते हैं which is very unfortunate.
देन यू सी पीपल डूइंग कैंडल प्रोटेस्ट. आपने अभी आरजी कार में देखा फास्ट ट्रैक कोर्ट विच वाज सुपर्ब, यू नो. फॉर सच पीपल देयर कैन नॉट बी एनी, they don't deserve to live. Right. When there is any molestation, when there is any rape, we men also stand for the women. True. We stay in Mumbai. आपने यहाँ पर I'm sure you would be traveling by local trains. Yeah. You know, my colleagues, my friends, मेरे खुद के घर में females when they work, they come by train in the last train. And मुझे डर नहीं है because I know Mumbai for that matter is safe. Right. And at times we have seen people fighting for a female. Right. But when was the last time you have seen a female fighting for a man? Very few. True. हमारे काफी कलीग्स होते हैं who will give you sympathy, empathy, सब कुछ देते हैं. जी. But लॉ की अगर हम बात करें, it is not gender equal. Definitely. आप एक रेप के केस में देख लीजिए, which is again, as I said, it is very unfortunate. Right? Yeah. A rapist doesn't deserve to live. While any crime is a crime, and there is a law for it, but I think high time that cases related to rape should be fast tracked. Yeah, definitely. Like, But उसमें अगर आप वापस से देखते हैं ambiguity, a female अगर किसी आदमी के ऊपर रेप का केस लगाती है, उसका करियर खत्म भाई. true. आपको पहले दिन से सोसाइटी में विलन बना दिया जाता है, whether you are actual accused or not. Extortions होते हैं पैसे के, जी. वो चीज़ 498 में भी होती है. एंड आई डोंट थिंक दिस इज द राइट चैनल वेयर आई शुड नेम, बट मैं आपको पुलिस वालों के नाम तक बता सकता हूँ जिन्होंने मुझसे पैसा लिया है धमका के, और एल्स बेटा तेरा तो करियर खत्म कर देंगे. सो इमेजिन ये एक केस में ऐसा हो रहा है जहां पर कोर्ट में आपका प्रोसीडिंग चल रहा है. सो रेप केस में क्या होता है? अभी रिसेंटली आई थिंक आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, आई थिंक हिमाचल प्रदेश के शायद किसी बीजेपी मिनिस्टर पे रेप का केस लगाया था किसी फीमेल ने. जी. एंड पास 2-3 दिनों में दैट केस हैज बीन क्वेश्चन्ड बाय, पुलिस ने उस पे पूरा क्लोजर कर दिया. एंड इट वाज फाउंड दैट द फीमेल who filed that rape case was demanding 50 lakh for compromise. True. Luckily वो मिनिस्टर था, वो काउंटर केस कर सका. जी. बट आपकी और मेरी कैपेसिटी में वैसा काउंटर केस करने का ऑप्शन नहीं है. No one will hear us. हेयर तो छोड़ दो यार, कोर्ट आपको खड़ा ही नहीं करेगा. जी. अगर आप किसी पे सी वाई और कोर्ट्स आर बर्डन. Yeah. हम काफी टाइम से सुन रहे हैं कि नो हमारे जजेस, हमारे लॉयर, हमारी लॉ एनफोर्समेंट बहुत ज्यादा बिजी हैं, उनके पास बथेरे केस पड़े हैं. यू गो टू अ पुलिस स्टेशन आफ्टर 6:30, आपको कम से कम, आई एम अश्योरिंग यू कि आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाके देखिए, शाम को आपको 7 बजे से लेकर 11 बजे तक कम से कम 5 वहां पर फीमेल्स मिलेंगी जो डोमेस्टिक वायलेंस केस लिखा है. बट प्रवीण, 98% ऑफ द कंप्लेंट्स इन मेट्रो सिटीज आर फेक. सुप्रीम कोर्ट का एक नोटिस कहता है, दिस लॉ 498A सेक्शन was given to women as a shield, but they are using it as a weapon. Yeah. So अगर वो ऐसा हो रहा है, अगर ये गलत केसेस हैं, it is kind of blackmail. Definitely. Why doesn't law enforcement agency say कि भैया ठीक है तुमने ये blackmail किया है, counter case on you. True. And इसका एक demerit बताता हूँ. As I said, मैंने इंटरव्यू से पहले आपसे बात करते हुए बोला था कि if I see a guy in mall, उसने सेम मेरे जैसी व्हाइट शर्ट पहनी है और ब्लू डेनिम्स पहनी है, हम अरे भाई दोस्त बन जाते हैं. औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत कैसे है? I'll tell you. आप जो फेक केसेस कर रहे हैं, इसकी वजह से जो जेन्युइन केसेस हैं लोग उनको भी गलत समझ रहे हैं. Definitely. एंड द पीपल हु नीड इट इन द लोअर मिडिल क्लास और द लो इनकम ग्रुप, जहां पर ये केसेस हो रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग नोटिस. So not only to save men, obviously, मैं काफ़ी जगह, while I will not be negative about marriage, but I keep telling my friends जो मेरे से छोटे हैं, ऑफिस में कई बार आते हैं, तो मजाक में बोलता हूँ कि यार देखो ऐसा है, तुम्हें अगर शादी करके जान गंवानी है ना, तुम सुभाष बनना है, उससे अच्छा आर्मी ज्वाइन कर दो, सालों देश के काम तो आओगे. So I think that goes for parents also, कि आपको अगर अपने बच्चे को कुर्बान करना है तो आर्मी में भेज दो भाई, अच्छी, you will have a dignified death. Right. एंड कमिंग बैक अगेन टू अतुल सुभाष, नॉर्मली ये जो केसेस होते हैं, जो लोग सुसाइड करते हैं, हर बंदा सोचता है कि यार ये मेंटली बहुत वीक था. राइट. बट कहीं ना कहीं यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर पेन ऑल्सो. इंश्योरेंस कंपनी का एक क्लेम होता है
कि जहाँ पर अगर कोई बंदा इंश्योरेंस ले रहा है ना, 1 साल के बाद आप इंसान की सुसाइड भी कवर होती है। तो आज मैंने अगर प्रीमियम पे किया और 1 साल के बाद मैं सुसाइड करूँ, इवन दैट विल गेट कवर्ड। एंड द लॉजिक इज वेरी सिंपल। इंश्योरेंस कंपनी ये बोलती है कि यार अगर आज बंदा ले रहा है सुसाइड के थॉट से कि मैं मेरे फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दूँ, 1 ईयर इज मोर देन इनफ फॉर अ ह्यूमन टू अंडरस्टैंड कि भैया मैं जान नहीं दे सकता। मे बी उसकी सिचुएशन बदल जाती है, ही गेट्स अ बेटर ऑफर, कहीं से बोनस मिल जाता है, पैसा आ जाता है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम कम हो जाती है, राइट। बट एंडिंग अ लाइफ, स्पेशली फॉर अतुल सुभाष, उनका आपने स्टेटमेंट देखा है? बंदे ने 27 पेज का स्टेटमेंट लिखा था जी, एंड उसमें क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि मैंने इस बंदे से इतना पैसा लिया था, ये उधार देना है मरने से पहले। सो इमेजिन हिज पेन। यार यहाँ पर इंडिया में तो भी हैंगिंग नहीं होती है, डेथ इन कोर्ट केसेस में लाइफ टाइम आपको इम्प्रिजनमेंट मिलती है, राइट। फांसी नहीं लगती है, बहुत रेयर केसेस में, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, राइट जी। इमेजिन जो बंदे की जान जाने वाली है, जिसको पता है कि कल सुबह मुझे 6 बजे फांसी लगेगी, उसकी हालत क्या होती है। और यहाँ पर एक बंदा जिसको पता है कि मैं इस डिस्प्यूट से जा रहा हूँ, ऑलरेडी बंदा स्ट्रेस में है। आप डेटा निकाल के देखिए, पिछले 15 साल में अगर हम इंडिया की बात करें तो राइजिंग केसेस एक टाइम पे 70s 80s 90s में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो लेडीज की डेथ होती थी, बहुओं की डेथ होती थी, बेटियों को पैदा होने पे मार दिया जाता था जी। आज वो तो कम हो गया है। बट आपने यू हैव टर्न द टेबल्स अपसाइड डाउन। या आज आप आदमी को मार रहे हो। सो अंकुश भाई, अभी आपने ना एकदम मतलब बोलते हैं ना कि इफ अ पर्सन इज गोइंग थ्रू विद दिस पर्टिकुलर पेन और अ सफरिंग, राइट, so how it is impacted on their personal and professional life, right? You have highlighted one point like where you missed the good career opportunity because of the suffering and court hearing and all. So you have mentioned one more thing, like we are discussing about the Atul Subhash wala case, like उन्होंने suicide करी, right? That was what he thought, like this is the end, वरना मैं मतलब there is no other option for him, right? So as you mentioned, आपको भी एक बार बीच में suicide वाला मेरे भी suicidal thoughts आए थे। thought आए थे। So I just want to understand from that perspective, like how you overcome that thought. आपने उस thought से fight कैसे करी? Because that is what I want and we both want, right? कि जो आजकल suicide के cases जितने बढ़ रहे हैं, so we want to give message to the society. जो आज भी there is like one study which I have seen, there is more than 1.5 lakh or 2 lakh people are suiciding because of the wrong marriage. Means every 1.5 hour one person is dying because of this particular wrong marriage stuff, right? So I want to give message, I mean we want to give message to the audience, like if anyone is hearing us or listening us, कि भाई suicide is not the ultimate goal. It is never, Praveen, see, Yeah. ending your life is never an option. True. No, but the feeling, ऐसा कोई भी मैटर होता है, it is not only in your life, also in your professional career, you know, when you're put against the odds and you come out of it with the dignity, Right. that's the biggest relief. So having said that, मेरी लाइफ में भी एक फेज आया था जहाँ पर I thought ending my life would be the best option. All the sufferings will go in 1 minute. Yeah. You know, there was a huge amount that my case got settled with, a huge amount, much beyond my capacity. Now, while the demands were sky high, and I thought ending my life is the only option. No, I cannot let the suffering happen to my family. Mm-hmm. Even while I am earning, मेरा आज नहीं तो कल इस चक्कर में जॉब जाएगा. True. Right? So a thought came into my mind. I was going through the lowest phase. I had become very short-tempered, very ill-tempered. And कहीं ना कहीं प्रवीण, initially even if I tried, but मेरे professional career में भी वो चीज़ें आ रही थी. जी. I won't say बिल्कुल नहीं आ रही थी. You know, at times my colleagues would, the new joinees would obviously not know me. The old ones जो मेरे को जानते थे, they would say that Ankush, we can see the change in your day-to-day routine. You know, you becoming aggressive at times, that too without any logic, without any reason. I am someone who loves discussions. Yeah. But कहीं ना कहीं वो मेरे discussion argument हो रहे थे. I used to lose my temper very frequently. And वो आएगा यार, वो natural है, right? So as I said, I also thought of ending my life. I thought my family would get off all this mess. Because I was the main accused in that entire scenario. So Praveen, सेम जब मेरा कोर्ट का मैटर चल रहा था, मैं एक बार एज ए सेड कि मैं खुद इस चीज़ से जूझ चुका हूँ, तो मैं दिल्ली से ट्रैवल कर रहा था एंड बहुत सैडिस्टिक मेरे स्टेटस अपडेट रहते हैं व्हाट्सएप पे।
तो एक बंदा जिसको मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मिला था, ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड लाइक भाई क्या तू दिल्ली में आता और मिल के नहीं जाता। तो आई टोल्ड हिम ऐसी ऐसी सिचुएशन है, एंड थोड़ा बातें इंटेंस हुई और उसके बाद में आई जस्ट ओपन माई सेल्फ एंड आई टोल्ड हिम कि यार ये ऐसा ऐसा हुआ। तो बोला व्हाट नेक्स्ट, एंड मेरे मुंह से निकल गया कि बस यार अब तो लाइफ एंड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा पूरा थॉट यही था कि मैं दिल्ली से निकलूंगा बट आई विल नॉट रीच बॉम्बे। आई वुड डू समथिंग, आई वुड एंड माई लाइफ बिकॉज सफरिंग खत्म हो जाएगी इफ आई एम नो मोर, इफ आई एम नॉट देयर सफरिंग पूरी खत्म। दैट वाज अ रैंडम थॉट, जैसे काफ़ी लोगों के माइंड में आया, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने कर ली। तो आई एम रिएटरेटिंग दिस पॉइंट क्योंकि कहीं ना कहीं वी नीड टू हैव दैट सपोर्ट सिस्टम। आपका कोई सिबलिंग, आपका कोई क्लोज फ्रेंड, फैमिली मेंबर, यू नीड टू हैव समवन जो कि आपके साथ खड़ा है। वो बंदा मेरी लाइफ में भगवान बन के आया है उस दिन। वो बंदे ने, आई स्टिल रिमेंबर, 2:30 से हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ। 11:55 की मेरी विस्तारा की फ्लाइट थी। ये बंदा कांस्टेंट मुझसे बात करता रहा। और जब फ्लाइट में जाने के बाद एयरप्लेन मोड पे आया बॉम्बे में, जैसे ही मेरा फ्लाइट लैंड हुआ, द फर्स्ट व्हाट्सएप मैसेज आई गॉट वाज फ्रॉम दिस गाय। एंड उसका रीज़न ये था कि बंदा चेक कर रहा था कि मैसेज जैसे ही डिलीवर हुआ ये बंदे ने इमीडिएटली कॉल कर दी। और मैं एयरपोर्ट से लेके अपने घर तक जब पहुंचूं ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे का टाइम लगता है। बाय द टाइम यू गेट आउट ऑफ द प्लेन, अपना सामान लगेज कलेक्ट करो, या अगर नहीं है यू गेट द ओला उबर। और जहाँ मैं रहता हूँ स्टेशन से थोड़ा दूर है, तो आने में वो 1-1.5 घंटे का टाइम आराम से जाता है। ये बंदे ने तब तक मुझसे बात करी जब तक मैं घर पहुंच के बेल करके मेरी मम्मी ने बोला नहीं कि तू आ गया। एंड द वेरी नेक्स्ट डे व्हेन आई गॉट अप, कहीं ना कहीं वो माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ था। बंदे ने काफ़ी स्पिरिचुअल बातें करी, बंदे ने काफ़ी मेडिटेशन वाली बातें करी। आज भी मेरे व्हाट्सएप में देखोगे तो हमारा हफ्ते में 2-3 बार एक्सचेंज होते हैं, नमस्ते एक्सचेंज होता है। आज तक मैं इस बंदे को मिला नहीं हूँ, ट्रस्ट में। वो एज में मेरे से छोटा है लेकिन मैं उसे पंकज भैया बुलाता हूँ। तो इसी कहीं ना कहीं, इवन इफ आई कॉल माई सेल्फ एन एथिस्ट, मैं नास्तिक हूँ। मैं पिछले 8-10 साल से किसी मंदिर में नहीं गया हूँ। मेरे रूम में, मेरी गाड़ी में आपको कोई भगवान का ना फोटो, कोई मूर्ति, कुछ नहीं दिखेगी। बट ये बंदे ने थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा उसकी तरफ से है। और मैं एक चीज़ मानता हूँ यार, उस दिन ये साक्षात भगवान बन के बंदा मेरी लाइफ में आया और मेरा टाइम लिखा नहीं था। सो ऑल्सो वन मोर थिंग, जो मेरे माइंड में उस टाइम पे आई थी, आप आई डोंट नो आपने सुना है नहीं, हनी सिंह का एक गाना है, साडी माँ नू पुत नहीं लभने तेनू यार बथेरे। भाई तू तो 4 दिन बाद दूसरी शादी कर लेगी, मेरी मम्मी का क्या होगा? राइट। सो कहीं ना कहीं हमारे को वो बंदा हमारी लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच आई थिंक इनकी लाइफ में मिसिंग था, जिन्होंने सुसाइड किया। एंड ये डिस्कशन बहुत इंटेंस है यार। लाइफ किसी की भी हो, चाहे बच्चे की हो, बूढ़े की हो, या फिर ऐसे यंग बंदे, आईटी वाला बंदा था, फ्यूचर ब्राइट था बंदे का, सब कुछ सही था लाइफ में, बट वो फुल स्टॉप लग गया, वो लाइफ खत्म हो गई। उसके घर वालों के लिए वो सफरिंग खत्म नहीं होगी कभी, वो हमेशा रहेगी। बट हमारा जब ये डिस्कशन हुआ एंड यू सेड आप ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहते हो व्हिच इज अबाउट जनरल बीइंग जनरल न्यूट्रल, राइट? ट्रू। मेरे माइंड में पहला यही थॉट आया प्रवीण कि अतुल सुभाष की लाइफ गई है, दिल्ली में एक और बंदा है उसकी लाइफ गई है, जो कि अभी हाईलाइटेड केस है तो हमें उनका नाम याद है, 15 दिन बाद हम भूल जाएंगे। बट लेट्स नॉट लेट देयर लाइफ गेट वेस्टेड। इट शुड नॉट हैपन, इट कैन नॉट हैपन। एंड काफ़ी लोगों से जब मेरी इस बारे में बात हुई, ऑफिस में हम लोग जब बात करें, काफ़ी लोगों ने बोला भाई तुम 2 के इनिशिएटिव से क्या होगा। बट आई ऑलवेज बिलीव फासला अगर 1000 कदमों का भी हो या 1000 मीलों का भी हो, उसके लिए पहला कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक अगर ये पहला स्टेप आपने उठाया है, एंड जैसे मैंने आपसे पहले क्वेश्चन किया था कि प्रवीण कहीं ऐसा तो नहीं कि आप शादी करने वाले हो तो डर रहे हो तो इसलिए ये क्वेश्चन लेके आ रहे हो जी। बट हैविंग सेड दैट यार देखो, पब्लिक को ये समझना है कि मेरी कहानी हर किसी की कहानी नहीं हो सकती है। हमारे लॉ में चेंजेस ज़रूरी हैं, वो किस लिए हैं? क्योंकि जो आप गिफ्ट आइटम दे के डॉवरी आर्टिकल बोल रहे हो, मेरे केस में तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने खरीदी हैं या जो रिचुअल्स हैं वो भी डॉवरी आर्टिकल्स बोले गए हैं, एंड इट इज़ देयर इन लॉट ऑफ केसेस। बट इट कैन नॉट बी कि सब विमेन खराब हैं या सब आदमी खराब हैं। कुछ बुरे लोग हैं जी, डजंट मीन हर इंसान खराब है। उसका मैं आपको सबसे बड़ा रीज़न देता हूँ। अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो जितना मैं अपनी मम्मी की, अपनी भतीजी की, अपनी भाभी की रिस्पेक्ट करता हूँ, आई डोंट थिंक मैं उससे ज़्यादा किसी की कर पाऊँगा। एंड देन कम्स, अगर मैं आदमियों की बात करूँ तो माई डैड, माई ब्रदर, तो हम लोग इक्वल कर रहे हैं।
बट ये चीज़, ये बदलाव जो हम चेंज की बात कर रहे हैं प्रवीण, ये एक साइड से नहीं आ सकता। Definitely. आप आज की डेट में अगर आप अपने कलीग से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो, अपने बैचमेट से बात करो, ऑफ लेट हमने अगेन आई वुड से कि ये बॉलीवुड ने कल्चर खराब किया, मूवीज ने खराब किया, एक्टर्स, सोशल मीडिया, मॉडल्स, बहुत फ्रीक्वेंटली वो एक वर्ड यूज करते हैं, ऑल मैन आर डॉग्स। वी नेवर सेड सिमिलर थिंग अबाउट विमेन बिकॉज वी अंडरस्टैंड माई मदर इज ऑल्सो विमेन। बट उनके माइंड से ये माइंडसेट चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा और आपको करना पड़ेगा। Definitely. And though it might rub their ego, when somebody says this thing, ask them, isn't your father a man? True. Or my question to such females is very simple. See, आदमी जो भी है अपने पास एक्सपीरियंस की वजह से है। जी. When was the last time your dad acted as a dog or your brother? क्योंकि अगर तुम कर रही हो तो कहीं ना कहीं वहां से, या your past experiences कुछ खराब होगा, that's the reason वो बोल रही हैं। But having said that, यार आप निर्भया का केस निकाल के देख लो, उसके साथ जो खड़ा था वो भी एक मेल था, उसका फ्रेंड था। आई एम श्योर उसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। मैं भी रिसेंटली चेक कर रहा था प्रवीण भाई, हम जो वैलेंटाइन डे, ऐसे काफ़ी वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर डे बना रहे हैं, उसमें एक डे आता है मदर्स डे, उसमें एक डे आता है विमेंस डे, उसमें एक डे आता है डॉटर्स डे, राइट? आपको डेट्स भी याद होंगी जी. डू यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड सन्स डे? I'm hearing for first time. मैंने रिसेंटली देखा था, बिकॉज मैं आपसे डिस्कशन करने से पहले गूगल चेक कर रहा था। देयर इज समथिंग कॉल्ड सन्स डे, वी डोंट नो। बीइंग अ मैन, यू टेल मी व्हेन इज इंटरनेशनल मेंस डे? Somewhere in November, I guess. राइट, Yeah. समवेयर इन नवंबर। यू डोंट नो, जैसे 8 मार्च आपके माइंड में लगा हुआ है, True. यू डोंट रिमेंबर कि इंटरनेशनल मेंस डे कब है, बीइंग अ मैन। व्हेन वाज द लास्ट टाइम अ फीमेल, और रादर आई वुड से द अपोजिट जेंडर, विश्ड यू ऑन इंटरनेशनल मेंस डे? आपके एचआर ने, आपकी कंपनी ने, आपके कलीग्स ने, आपके कजन्स ने, व्हेन हैव दे मेड यू फील स्पेशल? एक नाम है खाली, वो है जस्ट लाइक पल्स पोलियो डे, True. राइट? उल्टा अगर आप देखेंगे तो वैलेंटाइंस डे पे, विमेन डे पे, आजकल तो क्विक कॉमर्स का टाइम है, तो ऑल दीज क्विक कॉमर्स कंपनी 10 मिनट में ला के देती हैं। दे हैव डिफरेंट पैकेजेस। Yeah. वैलेंटाइंस डे का देख लीजिए, गिफ्ट्स फॉर हर, गिफ्ट्स फॉर हिम भी हैं आजकल लकीली। Yeah. बट अगर हम लोग गिफ्ट्स की भी बात करें, वैलेंटाइन डे से पहले आपका रोज डे, ये डे आता है, बट वो रोज लड़की को मिलते हैं, लड़के को नहीं मिलते। आपके लिए, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी सिस्टर हो, या आपकी मदर हो, या आपकी वाइफ हो, विमेंस डे से पहले, मदर्स डे से पहले आप उनके लिए एक पैकेज बुक करते हैं। गो टू सैलून, स्पा चले जाओ, टेक अ हेयर कट, टेक अ स्पा, जो भी आप ले रहे हैं। यार मेंस डे की तो प्रॉब्लम ये है ना कि नवंबर में आता है साला, वो भी नो शेव नवंबर है। True. आपका इकलौता गहना, आपका इकलौता मेकअप जो आप दाढ़ी में कट बनाते हैं, वो भी नहीं बना रहे उस महीने, क्योंकि आप तो पैसा बचा रहे हैं नो शेव नवंबर। जी. वेयर आर द मेन राइट्स? नॉट जस्ट इन आवर लॉ, हमारी सोसाइटी में। एंड आई थिंक ये जो चेंज है, ये पेरेंट्स को लेके आना है, अपनी बेटियों को बताना है। मदर का इन्फ्लुएंस है, बट एट द सेम टाइम इवन अ फादर शुड टेल, हर लड़का खराब नहीं होता। अदरवाइज एन आई फॉर आई मेक्स होल वर्ल्ड ब्लाइंड। एक दिन वो आ जाएगा जब हर लड़कियां ये बोल रही ऑल मैन आर डॉग्स, और ये ऐसे सुसाइड किट से परेशान होकर लड़के बोलेंगे कि यार दे आर रॉबर्स। Yeah. एक्सटॉर्शन है। आप मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में देखिए, जैसे मेरे केस में देख लीजिए। जी. एक और चीज़ प्रवीण, अगर आप देखते हैं नॉर्मल केस में जहाँ सेपरेशन म्यूचुअल होती है, जी. सी एज आई सेड, दो अच्छे लोग कई बार साथ में अच्छे नहीं होते, एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं होते। Right. एंड इफ दे एग्री टू पार्ट वेज म्यूचुअली, उसका ब्यूटी क्या है मालूम है? जी. ये आज आपका बर्थडे है, आपको सामने से विश करेगी, कल उसका बर्थडे, आपने उसको विश किया, राइट? बट द मोमेंट यू गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट मोड, जहाँ पर ये कोर्ट कचहरी के चक्कर होते हैं, द फर्स्ट स्टेप दैट हैपेंस इज आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं इनिशियली टू अवॉइड एनी लिटिगेशन। या गुस्से में आपने कुछ बोल दिया, केस आपका बड़ा स्ट्रांग हो गया, या उन्होंने कुछ आपको बोल दिया विच यू कैन यूज अगेंस्ट हर एज एन एविडेंस, आप कम्युनिकेशन ब्लॉक करते हैं। और जब कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गई ना, दैट इज द एंड ऑफ अ रिलेशनशिप। तो ये चेंज वहां से आना बहुत जरूरी है। नॉट ऑल मेन आर बैड, बट नॉट ऑल मेन आर गुड ऑल्सो। Definitely. At the same time, you cannot criminalize all women. But बहुत हो गया है, you have to stop this somewhere. Definitely, yeah.
let's take it as a first step. Having said that, my story cannot be everyone's story. True. मेरे साथ गलत हुआ, मेरा रिलेशन खराब हुआ, things went haywire. I was drained emotionally, physically, mentally, financially, which is the biggest burden, and I still carry it. एंड आपने एक क्वेश्चन पूछा था, शायद मैंने उसका आंसर नहीं किया था कि हाउ वाज इट आफ्टर यू गॉट सेपरेटेड कंप्लीटली लीगली. मेरी लास्ट ईयरिंग के दिन प्रवीण, आई वाज ट्रैवलिंग, आई वाज इनफैक्ट ड्राइविंग माय कार. कोविड का टाइम था तो ई कोर्स चल रहे थे, मेरी वर्चुअल हियरिंग थी. एंड द मोमेंट जज सेड ओके दिस रिलेशनशिप इज नाउ टर्मिनेटेड, मैंने अपनी गाड़ी में 5 मिनट बंद करके सिर्फ चिल्लाया हूँ. इट वॉज आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, it was out of excitement, it was out of happiness. जो इतने सारे केसेस मेरे ऊपर चल रहे थे, इतना फ्रीक्वेंट मेरा ट्रैवल हो रहा था, एंड येस दैट इज गिवन मी पेन, स्कार्स फॉर लाइफ टाइम. समबडी लाइक मी हु यूज्ड टू लव ट्रैवलिंग, आज मुझे ट्रैवल करने की बात आती है तो इट गिव्स मी passes a current in my spine. True. And I can talk about it hours and hours and hours. मैं lectures दे सकता हूँ, I can tell. But knowing me, आपको पता है कि I'm somebody who can control my emotions like anything. True. That I have experienced, like we are together from last 1 year. But You I would was not know, यार. yeah. See, being a man, ladies आजकल normally, they discuss everything about their menstrual cycle. Right. हम लोग ऑफिस में, हम या बाहर अपने फ्रेंड सर्कल में इंटेंस चीजें कभी डिस्कस नहीं करते, राइट? True. मे भी शायद हमारे को पेरेंट्स ने यही सिखाया गया है कि बीइंग अ मैन यू हैव टू बी स्ट्रांग. Exactly. ऑन द कॉन्ट्ररी, काफी जगह आप न्यूज आर्टिकल्स में देखेंगे व्हेन दे डिस्क्राइब अबाउट अ वुमेन, दे से द वीकर सेक्स. इट इज नॉट वीकर सेक्स. एंड माय अपील टू वुमेन आल्सो इज द सेम थिंग. यार, अगर आपको कंधे से कंधा मिलाने की बात कर रहे हो, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो, प्लीज स्टॉप गेनिंग सिंपैथी. हम कंसिडर कर रहे हैं कि आप काफी फील्ड में हमसे बेटर हो. जी. You can live your life, as you keep saying, we can live our life without a man. We are more than happy. But then, stop torturing men for this alimony thing. Yeah. Easy money कभी नहीं आती प्रवीण भाई. आज अगर कोई आदमी किसी को एलिमनी दे भी रहा है, या तो ऑप्शन है कि लाइफ खत्म कर दो, एलिमनी देना ही नहीं पड़ेगा, जो हमारे कुछ फ्रेंड्स ने किया जिनकी हम बात कर चुके हैं. जी. या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, भैया आपने पैसा दे दिया, लेकिन आप जब ये पैसा दे रहे हो ना, आप दिल से दुआ करके कभी नहीं दोगे. True. Easy money comes with a curse. Yeah. Are you willing to live with that curse? टेम्पररी हैप्पीनेस मिल जाएगी, आपके अकाउंट में आपको 50 लाख 60 लाख दिख जाएगा, आप एफडी करोगे, साल का पैसा भी कमा लोगे. बट विल दैट बी लॉन्ग इनफ फॉर यू टू सस्टेन? मेरे पे लोन लाइबिलिटीज आए, आई हैड बिग फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस. जॉब कर रहा हूँ ना, इट गिव मी अनदर रीजन टू ग्रो इन माई करियर. आज जितना मेरा खर्चा 70,000 की सैलरी पे हो रहा था, आज मुझे पता है विद द लोन लाइबिलिटीज मेरे लिए 1.5 लाख कम है. तो रादर देन क्रिबिंग ओवर इट, द बेस्ट थिंग इज राइज अप, नहा धो के घर से निकलो, True. बाल कंघी कर लो, ऑफिस चले जाओ. आई हैव टू ग्रो टू द नेक्स्ट लेवल. Definitely. So Ankush bhai, means after definitely yaar, it was your story, right? And I would really like to thank you, like because of you only I got this idea. If I don't know someone, definitely for me it is like a random news. I'll watch that news, I'll show some sympathy, but कुछ दिनों बाद मैं भूल जाऊंगा, right? Because और ये बहुत से यूथ के साथ हो रहा है. बट यूथ ये नहीं समझ रहा है कि डेफिनेटली सी शादी करना है, दैट इज़ योर सोशल एंड पेरेंटल प्रेशर फॉर मोस्ट ऑफ द मैन. जैसे वुमेन्स आजकल की डेट में इंडिपेंडेंट हो गई है, दे आर लाइक वी डोंट वांट टू मैरी, राइट? तो उनके लिए इंडिपेंडेंस इज लाइक कि फाइनेंशियली इफ दे गॉट स्ट्रॉन्ग, दे विल से आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई डोंट नीड एनीवन. बट फॉर मैन इट इज़ लाइक कि नहीं, ठीक है, फैमिली प्रेशर है, घर से प्रेशर आ रहा है, पेरेंट्स को. So the motto of marry for both the gender is different. For us is like कि नहीं, ठीक है भाई, हमें शादी इसीलिए करनी है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कोई आके हमारा घर संभाले, हमें संभाले, इमोशनल हमें सपोर्ट दे, हमारे फैमिली को संभाले, राइट? सो एंड ऑफ द डे अगर आप बोलो या मतलब डेफिनेटली देयर इज
मैनी थिंग इज हैपनिंग, राइट? जैसे अभी आपने एक पॉइंट हाईलाइट करा कि अगर वुमेन्स तो बोलती रहेगी ऑल मेंस आर डॉग, राइट? सो कुछ टाइम बाद सेम ऐसा आएगा कि मेंस भी यही बोलेंगे कि भाई नहीं, सारी लड़कियां एक जैसी है. सो इट वोंट लाइक, वी आर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, वी आर नॉट हियरिंग एनीवन एल्स. एक कुछ लोगों की वजह से हमने पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर दिया. बदनाम कर दिया है. सो टू एंड दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट, डेफिनेटली एज यू मेंशन, इफ वी बोथ आर टॉकर, अगर हमने इस चीज़ पे डिस्कस करना चालू किया तो वी वोंट स्टॉप. दिन हफ्ते महीने होते जाएंगे. दिन हफ्ते महीने होते जाएंगे, कैमरा की रील्स पे रील्स बढ़ती जाएगी और डेफिनेटली वी वोंट स्टॉप. सो टू एंड दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट, I would like to ask you something, like definitely for me and people like me, like for my friend circle, like we are in that particular age, as you mentioned, when we started the podcast, like कि शादी आपकी एक सही एज में हो जानी चाहिए, right? And that is definitely a true part because your parents are growing, you are growing, right? So you should get married at right age. So what will be your I can say message to people who are going to get married or thinking to get married? सो एटलीस्ट डेफिनेटली वी डोंट नो, एज यू मैंशन, कि औरतों को समझना ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाया अभी तक, तो राइट? कोई नहीं समझ पाया कि औरतों के माइंड में क्या चल रहा है, उनका बिहेवियर क्या है. बट डेफिनेटली देर इज, आई मीन, इज देर एनीथिंग विच नॉर्मल मैन कैन, आई मीन, गेट सेफ फ्रॉम द रॉन्ग मैरिजेस, या फिर वैसा कुछ, एनीथिंग विच यू परहैप्स प्रवीण, इसमें Yeah. देखिए दो चीजें हैं. पहले तो मैं एक थोड़ा सा आपको करेक्शन कर दूं, जी. बिकॉज यू सेड हमारी लाइफ में कोई आए वो ये संभाले. Again, when you say this, you have to be very, either I can say diplomatic, or you have to choose your words very correctly, politically correct. ओके. Otherwise, the opposite gender will say कि देखो इन्हें तो नौकरानी चाहिए, पार्टनर नहीं चाहिए. Which I've heard from many people in my past experiences, my relationship, which I was going through. But having said that, प्रवीण, एक और चीज़ याद रखिए. आई थिंक शायद गुलजार साहब ने एक शेर बोला था, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि मेरी जेब में कुछ छेद क्या हो गए, सिक्कों से ज़्यादा तो मेरे अपने निकल गए. तो जब आप ऐसे कोर्ट के लिटिगेशंस वगैरह में जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशंस, कहीं आपके नॉट जस्ट रिलेशनशिप विद योर पार्टनर बट विद अदर रिलेटिव्स ऑल्सो. क्योंकि आपकी सोसाइटी में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेशनशिप में नॉट एवरीबडी स्टैंडिंग बाय योर साइड. एट टाइम्स देयर वुड बी पीपल हु वुड ऑलवेज बी विलिंग टू पुट यू डाउन, और जो यहाँ पर उनको मौका मिल जाता है. ऐसे बहुत सारे मामा शकुनी आपको मिल जाते हैं जो इस टाइम पे आके दूसरे की आग पे अपनी रोटियां सेक के चले जाएंगे. जी. बचपन से हमारे इंडिया में काफ़ी पुरानी एक कहावत चलती है कि हमें जब भी हम पढ़ाई में कम नंबर आते तो घर वाले, बेटा शर्मा जी के बेटे को देखो इतने नंबर आ गए, कंपैरिजन. और जब वो शर्मा जी का बेटा कहीं डाउनफॉल में आ गया ना, तो लोग उस टाइम पे उसको एकदम चिता ही जला देते हैं. डेफिनेटली. तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि हाउ टू सेफगार्ड योर इंटरेस्ट while it is not legal in India, I think people should try to do this and try to make it legal. There is something called prenup, nuptial agreement. आपने वो किया है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्लियर है, आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस क्लियर है, राइट? उससे भी पहले चट मंगनी पट वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो यार. क्विक कॉमर्स नहीं है रिलेशनशिप, इट्स अ रिलेशनशिप. जब तक आप एक इंसान को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो, आई थिंक 2 महीना 3 महीना इज वेरी लिटिल टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड समवन. मैं अपने फ्रेंड से एक और से बात कर रहा था. आई सेड हमारे कल्चर में जो एंगेजमेंट होती है, एंगेजमेंट से शादी के बीच का टाइम होता है, वो थोड़ा टाइम होता है. एंड देन एक बार शादी जिस दिन है उस दिन तो देयर इज नो लुकिंग बैक. आपकी शादी फिक्स हो गई है, सब अरेंजमेंट हो गया. आई सेड फिर भी हमारे घर वाले ना हमें घोड़े पे भेजते हैं कि बेटा अभी भी यूटर्न मारना है तो मार ले. एंड थैंकफुली इन वन पर्टिकुलर सेक्शन वहाँ पर तो उनके रिलीजियस शेयर्स आके पूछते हैं कि बेटा तुम्हें शादी कबूल है जी. आप बड़ी खुशी से बोलते हो हाँ साहब कबूल है. फिर वो बोलते हैं अभी बेटा अभी भी सोच ले, दोबारा मौका नहीं मिलेगा. आप फिर बोलते हो कबूल है. तीसरी बार बोलते हैं साले तुझे मरना है, अभी भी समझा रहा हूँ, कबूल है. आप हाँ बोलते हैं और उसके बाद आपकी लग जाती जी. तो गो फॉर प्रीनप्शियल एग्रीमेंट विच इज नॉट रॉन्ग, व्हाइल इट इज नॉट येट accepted by Indian law completely. Okay. But there will be time soon जब ये एक्सेप्ट होगा जी. आज की डेट में तो लिव इन रिलेशनशिप को भी उत्तराखंड जैसी स्टेट ने लीगल स्टेटस दे दिया है. एंड उसमें कुछ चेंजेस किए हैं कि जहां पर दोनों पार्टनर्स जो लिव इन में रह रहे हैं उनके पेरेंट्स को कंसेंट देना पड़ेगा. दैट दे आर ओके विद दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट. तो व्हाई नॉट दिस? एज आई सेड, जैसे जेंडर न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हो तो स्टेप कहीं ना कहीं से पहला कदम उठाना है. यहाँ भी आपको उठाना पड़ेगा.
True. और ऐसे केस में जिन लोगों के आपके लिए एक दुश्मन की ज़रूरत नहीं है आपको बर्बाद करने के लिए, ऐसा पार्टनर मिल जाए तो Your life is गेम इज डन। yeah. काफ़ी पहले एक मूवी में अजय देवगन ने बोला था ना, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। क्या बात। यहाँ तो अपने ही लूट रहे हैं। True, So true, called. true, true. Yeah, exactly. ठीक है, it was really great discussion with you, अंकुश भाई। Let's see, definitely, जैसे कि अभी अपने डिस्कशन में एक पॉइंट हमने ये भी रेस किया था कि there is one of the politicians जी जिन्होंने भी स्टार्ट किया ये मुद्दा पार्लियामेंट में लाया है। होपफुली वी सी some changes. some light, ray of light someday। Yeah, मंजिल दूर है बट कभी ना कभी आएगी। डेफिनेटली। तो पहले जो सेइंग थी राइट कि लाइक व्हेन वी आर टू यंग, सो वो टाइम पे जैसे कि हमारे डिस्कशन में भी हमने ये पॉइंट निकाला कि पहले के ज़माने में राइट इन लेट 90s, अर्ली 90s, लड़की होते ही उसे मार दिया जाता था। सो वो टाइम पे एक स्लोगन विच वाज वेरी पॉपुलर लाइक कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। But now, like to see this condition and situation which is going on, so I just heard somewhere like कि अभी बहुत हो गई बेटी बचाओ, now it is बारी to बेटे बचाओ। So which is like कि which I can say like कि बहुत ही ज़रूरत है इस चीज़ की लोगों को समझने के लिए कि डेफिनेटली आपको बेटियों को तो डेफिनेटली बचाना है। डेफिनेटली नॉट इट इज़ लाइक कि हम सिर्फ एक किसी जेंडर की बात कर रहे हैं, बट अभी इस देश को इस समय हमें ज़रूरत है कि हम हमारे बेटों के बारे में भी सोचें और डेफिनेटली उन्हें भी थोड़ा सेफ गार्ड करें। बिल्कुल होना चाहिए। और गवर्नमेंट को बेसिकली जिस तरह से उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कैंपेन रन करा था, उनके लिए बहुत सारे लॉज निकाले। सो आई होप वी विल एबल टू सी सम। मैं वही कहने वाला था प्रवीण, हमारे कॉलेज में ना देयर वाज अनदर कैंपेन। राइट, जब इंडिया में टाइगर्स की पॉपुलेशन कम हो रही थी तो देयर वाज अ कैंपेन कॉल्ड सेव द टाइगर। या तो हमारे कुछ फ्रेंड मजाक में बोला करते थे कि भाई शेरों को छोड़ो, पहले लड़कियों को बचा लो, बाइक पे बिठा के शेर को थोड़ी ना घुमाना है। तो वैसे मैं वही कहूँगा कि यार बाइक चलाने के लिए तो जिसको चलानी है उसे तो बचा लो पहले। True. So we'll end here. Like it was really great discussion. So end of the day, I mean, I'll say like we are not against any gender. We shouldn't be. But we should focus on few things where it is like misuse of law, which was created to prevent them, protect them. But now few of women are misusing those laws, so we should be little care of it because marriage is not a short-term relation. It is really a long-term relation or a lifetime relation. So any men who are thinking to get married should select their partner the right match. Thank you so much. थैंक यू प्रवीण। और एक जाते जाते एक और शेयर के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा क्योंकि आपका जो एंडेवियर है ना, ये एज ए सेड इमीडिएटली शायद इसका इम्पैक्ट नहीं आया। Definitely, yeah. बट सोसाइटी नीड्स दिस चेंज एंड वी नीड इट बैडली। दिस इज अ हाई टाइम, राइट? खाली बेटी बचाओ या बेटा बचाओ शुड नॉट बी द ओनली थिंग। इंसानियत बचा ली ना तो मेरे दोस्त बहुत कुछ बच जाएगा। और इंसानियत का मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जितना हमने मेंशन किया, जितना डिस्कस किया कि कोर्ट केसेस में जो हैरेसमेंट होती है पैसा आपकी साइड से जा रहा है, ह्यूमिलिएशन हो रही है, यू आर लूजिंग योर जॉब, वो एक लड़के के लिए ज़्यादा हो रहा है। तो आप ख़त्म करना चाहते हो तो उतनी इंसानियत रख लो यार। एक अपने दायरे में रह के जो चीज़ होती है ना प्रवीण, वो हमेशा बहुत सही होती है। तो इस पे जो मैं आपको शेर बोल रहा था, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा जी। जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी मैं दूर तलक छोड़ आऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। क्या बात। तो 2 साल बाद भी जब ये लोग आपका वीडियो देखेंगे, आई थिंक आने वाले सालों में this can be a groundbreaking thing. And this has to be a groundbreaking thing. Definitely. Nice talking. Thanks, Praveen. Thank you so much.